वालेकुम सलाम सर, ठीक है। जी, लास्ट टाइम बेटा हमने जो टॉपिक्स कवर किए थे उसमें कोई प्रॉब्लम अगर आप लोगों को है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। नो सर। कोई मसला नहीं है उसमें। आपने प्रॉब्लम्स की हैं बेटा कुछ? किसी ने प्रॉब्लम्स करने की कोशिश की है? सर सिर्फ एक की है, बाकी करेंगे बाद में। बाद में कब करेंगे बेटा? सर आज कर लेंगे। अच्छा चलो, एज यू लाइक। हमने एक्टिविटी रेशियोज कर ली थी कल। जी सर कर ली। एवरेज कलेक्शन पीरियड भी हो गया था। जी सर एवरेज कलेक्शन पीरियड भी हो गया। एवरेज पेमेंट पीरियड नहीं सर ये नहीं किया था। ओके। चलें माइक ऑफ कर लें अपने तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Yesterday we have discussed about different ratios and different financial statements which are related to our uh, financial analysis, and today we are approaching towards another one. Beta kindly mic off करना। जी। Yesterday we have discussed about the average collection period, and another ratio we are going to discuss and study today, which is the average payment period. The both are belongs to the umbrella of activity ratios in this chapter, and today we are having an average payment period, which is the same calculation method is available as we have discussed about the average collection period. So this is about the accounts payable and account average purchases per day. So there we have discussed about average accounts receivable over the sales per day, and here we are having the average purchases per day. So from the balance sheet, from the income statement, from the activity cash outflow and everything, the financial statement, we will find the heads and we will put the values into this formula. The average payment period is equals to accounts payable over average purchases per day. Again, for per day, we have to divide the figure, which is annual purchases. We have mentioned in our balance sheet, which is going to be divided by 365, and in denominator we are going to put annual purchases over 365, and in numerator we are having the accounts payable. So
when we are putting the values into it, we will get the value of the ratio, which is 95.4 in this particular example. It means we are having a payment period which is being delayed for 95.4 days on average. So on as far as financial manager is concerned, the comparison between average collection period and the average payment period, the average payment period should be larger than the average collection period so that one can easily pay the bills, the amount which is due on the behalf of the company through its revenue generation, through sales. If the sales are being recognized and sales are being realized into the cash, converted into the cash first, and then you are going to pay uh, the payments which are due on the company, then it is a good management. If the collection period is longer than the period of your payment, then you will run short of the funds. You will run short of the current assets. You will run short of the cash. Are you understood? Are you getting my point? Yes, sir. चलें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें मैंने क्या कहा अभी. बेटा जो मैंने अभी कहा वो मुझे बता दें. अभी बेटा यस सर कहा था आप में से किसी ने. अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो उसका क्या फायदा है. आप में से कोई भी नहीं बोल रहा इस वक्त. यस सर. सर जी समझ आ रही है. बताए ना मुझे क्या समझ आई, क्या कहा है मैंने. सब लोग जरा वीडियो ऑन करें अपने अपने. सर एवरेज पेमेंट पीरियड ऐसी अमाउंट है जो सर ऑफ क्रेडिट अकाउंट पेबल कर रही होती है कंपनी पे कर रही होती है सर ऑफ क्रेडिट. जी ठीक है, आप सही कह रहे हैं, कर रही होती है, लेकिन मैंने कुछ अभी आपको एक टेक्निकल रीजनिंग दी थी कि फाइनेंस एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज सेल्स पीरियड के दरमियान सॉरी सर उसकी समझ नहीं आई थी सर.
जी बेटा, आपको क्या समझ नहीं आई जो मैंने बात कही थी? सर जो आपने टेक्निकल बात की सर उसकी आवाज कट कर रही थी। जी मैंने आपसे बात कही थी, चले मैं इसको थोड़ा सा साथ लिखता भी हूँ ताकि आप लोगों को अगर कोई नई बात समझ आती तो वो आप लोग इसे देख लें। मैंने कहा था एवरेज कलेक्शन पीरियड एंड एवरेज पेमेंट पीरियड, these two ratios are very important for financial managers. These two ratios are very important for the managers. Why? If the average collection period is longer than the average payment period, then the firm will face a shortfall of cash. Is it right? Yes, sir. So one should, being a manager, maintain the average collection period should be smaller than the average payment period so that there must not be a cash shortfall. Is that clear? Yes, sir. Okay. चलें आगे चलते हैं हम towards the total asset turnover. This is again a very good ratio to find out the efficiency of the asset deployed by a firm for their um, uh, uh, profit generation for their business. The total asset turnover indicates the efficiency with which the firm uses its asset to generate sales. Total assets turnover is calculated as follows. The formula for total asset turnover is sales divided by total assets. The value of Vale Company total asset turnover in 2012, which is given in the previous balance sheet, is again deployed in this particular equation, which is $3.07 million divided by $3.597 million, and it is going to be the 0.85. So this means the company turnover its assets 0.85 times per year. Generally, the higher a firm total asset turnover, the more efficiently its assets have been used. This measure is probably of greatest interest to the management because it indicates whether the firm's operations have been financially efficient or not. So this is a measure which tells us tells the top management that the assets which they have deployed, which they have invested in the company, whether they are performing efficiently to generate the profitability, that generate the sales revenue or not. So it is very important figure, important ratio for the top management to make some financial decisions in the future. Is that clear? सर एक दफा दोबारा बता दें लास्ट से। चले मैं इसको थोड़ा सा दोबारा उर्दू में बताने की कोशिश करता हूँ आपको। एसेट टर्नओवर रेशियो जोन सी है, एसेट टर्नओवर रेशियो बेसिकली क्या बताती है आपको कि आपने कितने एसेट जोन से हैं वो एक कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं और उन एसेट्स के थ्रू आप कितनी सेल्स जनरेट कर रहे हैं। ठीक हो गया? जो थंब रूल Yes, sir. फार्मूला है, थंब रूल है
कि आपकी जितनी ज्यादा ये रेशियो ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा बड़ी फिगर होगी, उतना आप एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहे हैं, आपके एसेट उतना एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहे हैं टू जनरेट द सेल्स। अगर ये कम होगी तो इसका मतलब है आपके कोई ऑपरेशंस में ऑपरेशनली फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपके एसेट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे। एसेट्स जो है वो आपने ज्यादा रखे हुए हैं। क्लियर है? जी सर। होल्ड कीजिएगा। जी बेटा, यहां तक कंप्लीट हो गया? कोई बात ऐसी तो नहीं जो समझ ना आई हो? सर सब सर जी excuse me, जी सर ये सारी रेशियोज हमने जो लास्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी, लेकिन हमें सर ने पढ़ाई नहीं थी और ना हमारा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो सर ये क्लियर करवा दे सही तरह। बेटा, करवा ही रहा हूँ। मैंने तो आपसे कहा ही नहीं कि आपने पढ़ी हुई है, मैं तो आपको दोबारा कंसेप्ट ही क्लियर करवा रहा हूँ। तभी तो बार बार आपसे पूछी जा रहा हूँ कि आपको क्या समझ आई, समझ आई, समझ आई। लास्ट सेमेस्टर में आपने किस कोर्स में पढ़ी है रेशियोज? सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सर ने पढ़ाई नहीं थी, लेकिन हमारे सिलेबस में तो इंक्लूड थी और हमने पेपर्स में भी आई थी एमसीक्यू। चले, मैं आपको पढ़ा तो रहा हूँ। आप अगर पढ़ रहे हैं मेरे साथ साथ, मेरे पॉइंट्स को गेट कर रहे हैं, तो आपको समझ आ जानी चाहिए। मैं तो आपको थॉरोली पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई ओवरव्यू थोड़ी दे रहा हूँ। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सर जी समझने में हो रही है। दोबारा बोले। दोबारा बोले बेटा। सर एक्चुअली मसला बताए क्या, ऑनलाइन क्लासेस में कम ही समझ आती है टेक्निकल चीज। ऐसा ना, आप पूछ भी तो नहीं रहे ना बेटा। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप मेरे से पूछें पूछें पूछें, आप लोग पूछते ही नहीं है। आप लोग जब तक पूछेंगे नहीं तब तक मैं कैसे आपको और मजीद गाइड कर सकता हूँ? सर आप उर्दू में एक्सप्लेन कर दिया करें। बेटा, मैं इंग्लिश में सर पढ़ाता हूँ, वो उसके बाद आपसे एक बार उर्दू में ही डिस्कशन चाहता हूँ। आप लोग तो डिस्कस ही नहीं करते। इस वक्त 46 के करीब हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। 3 या 4 लोगों के अलावा किसी का यस सर भी नहीं आता, आवाज आती। बिल्कुल सर जी, आपकी बात ठीक है। वो रिपीट कर दीजिएगा एक बार सारे टॉपिक्स ना, ताकि वो एक बार हो जाए तो उसमें से जो भी है हम आपसे कंफर्म कर लें। अच्छा चले, मैं देखता हूँ इसको, कोई हम एग्जांपल लेके करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाएं। ये आपको नजर आ रहा है 3-14?
बेटा नजर आ रहा है आप लोगों को 3-14 प्रॉब्लम? जी सर। Okay. Here we have to find out the liquidity ratio. George Smith has compiled some of his personal financial data in order to determine his liquidity position. The data are as follows. अकाउंट में अगर देखें तो सबसे पहले कैश लिखा हुआ है, कैश इज $3,200. Marketable securities are available, which is $1,000. Checking account is available, that is $800. Credit card payable is $1,200, and short-term notes payable is $900. So how we can calculate the liquidity? First of all, we have to distinguish between the assets and the liabilities. आप लोगों को स्क्रीन पूरी करंट नजर आ रही है? एसेट डिवाइडेड बाय करंट आप लायबिलिटी। लोगों को स्क्रीन पूरी नजर आ रही है? यस सर। पूरा पेज नजर आ रहा है? मिनिमाइज तो नहीं हुआ हुआ? सर अब हुआ है, नहीं, अब अब हो नहीं नजर गया। आ रहा। अब आ रहा है नजर आपको? जी सर। आपको और भी कुछ नजर आ रहा है इस स्क्रीन के अलावा? नो सर। नो सर, सिर्फ लिक्विडिटी रेशियो और इन्वेंटरी मैनेजमेंट टॉपिक शो हो रहा है सिर्फ ये। ओके। जी, अब आपको एक्सेल शीट भी नजर आ रही है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। सर आ गई, अब आ रही है सर। ओके। लोडिंग हो रही है सर। चलो बेटा, कुछ आपके इंटरनेट्स वगैरह में प्रॉब्लम है, यस सर, यस सर। उसका हम कुछ कर नहीं सकते। चलें जी, बेसिकली वी आर कैलकुलेटिंग द लिक्विडिटी रेशियो। We are segregating the assets and the liabilities. On asset side, we have cash, which is equals to 3,200. Then we have marketable securities. Which is $1,000. Then we have checking account. This is $800. Now we have the credit card payable. Which is around $1,200. Then we have short-term notes payable, which is around 900. So अगर आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये आपकी एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड मैंने अलग अलग कर दी है। नजर आ रहा है सबको? बेटा सबको नजर आ रहा है ये? यस जी सर। सर। चलें, ये मैंने अलग अलग कर दी। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। ये साथ साथ आप लोगों ने गेट करना है। हम इसको एक्सेल पे मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को साथ साथ थोड़ा सा एक्सेल पे भी काम करना आ जाए। हाँ जी सर। ठीक है, इसको हम ऑटो सम पे लगा देते हैं।
इसको भी हम ऑटो सैंपल लगा देते हैं। तो ये आपके पास जो आपकी टोटल लाइबिलिटी साइड है वो आपके पास 2100 आ रही है, और आपके पास एसेट साइड जो उनसी है, डेफिनेटली ये सारे करंट एसेट्स हैं, ये करंट लाइबिलिटीज हैं, ऐसा ही है। यस जी सर। सर ऐसे ही। सर ठीक है, तो ये आपके पास टोटल आ गया, टोटल करंट साइड के एसेट्स आ गए, टोटल करंट साइड की लाइबिलिटीज आ गई। तो जब हम करंट रेशियो फाइंड आउट करना चाहते हैं, current asset divided by current liabilities. yes, so this formula must be is equals to this divided by this, right? 2.8 जी सर। तो जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो आपके पास आ गई करंट रेशियो विच इज 2.38। नजर आ रहा है सबको? जी सर। जी चले, ये आपके पास करंट रेशियो आ गई। अगेन इसको हम थोड़ा सा साथ साथ देखते जाइएगा, जो जो मैं फॉर्मेटिंग वगैरह कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा। ये मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है, 2.38। तो इसका मतलब क्या बना? यही सर आपसे पूछ रहे। अच्छा चले, इंटरप्रिटेशन ये बनती है, ये बेसिकली हमारा जो बंदा था जिसका नाम था जोश, आई थिंक सो, जी जोश स्मिथ। तो हम इसके बारे में लिखेंगे जोश स्मिथ हैज एडिक्वेट करंट एसेट्स टू पे ऑफ its current liabilities as the current ratios shows the value of 2.38, which means Josh has 2.38 times assets than its current liabilities. Again, it should be not only assets, it should be written as current assets. जी, यहां तक बात समझ आई कि नहीं? मीन्स के सर उसकी जो एसेट्स हैं वो उसकी लायबिलिटीज से ज्यादा है। देखे ना बेटा, हमने अभी लिखा जो मैंने, उसके मुताबिक आपको क्या नजर आ रहा है? आपको पता लग रहा होगा कि मैंने लिखा है कि उसके जो एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, वो 2.38 टाइम्स हैं। जब हमने रेशियो कैलकुलेट की तो रेशियो में हमने क्या कैलकुलेट किया? कि रेशियो उससे में हमने ये देखे ना, कैलकुलेट किया हमने टोटल एसेट डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, टोटल करंट एसेट डिवाइडेड बाय टोटल करंट लाइबिलिटीज। तो हमारे पास जो फिगर्स आया, इसका मतलब है 2.38 टाइम्स उसके करंट एसेट्स ज्यादा हैं उसकी करंट लाइबिलिटीज से। यस सर। जी सर। ठीक है, तो इसका मतलब जी ये हुआ कि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ जो सी है, हम एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जॉर्ज हैज
good financial health to meet his current needs. Clear? जी सर। ठीक हो गया? अब ये समझ आ यस गई है? सर। यस सर, आ गई सर। चले, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चले, हम वापस चलते हैं जनाब एक और क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की तरफ। Wilkins Manufacturing has annual sales of $4 million and a gross profit margin of 40%. Its end of quarter inventories are. एंड ऑफ क्वार्टर इन्वेंट्री अगर आप देख रहे हो तो आपके पास सामने नजर आ रही है। फर्स्ट क्वार्टर में $400 की है, सेकंड में $800 की है, थर्ड में $1.2 मिलियन की है, फोर्थ में $200,000 की है, $200,000 की है। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द एवरेज क्वार्टरली इन्वेंट्री and use it to calculate the firm's inventory turnover and the average age of inventory. हमने इन्वेंट्री टर्नओवर पढ़ा था ना? जी सर पढ़ा था। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। जी। तो यहाँ पे एज ऑफ इन्वेंट्री की बात कर रहा है ना, इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज, एज ऑफ इन्वेंट्री की बात कर रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमने जो सी 400 मैन्युफैक्चरिंग हैज एनुअल सेल्स ऑफ 4 मिलियन, ठीक हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास कितना है? 40%। ये यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री की क्वार्टरली उसने बता दिया कि इन्वेंट्री हमारे पास इतनी मौजूद है, ठीक हो गया। अब इसकी एवरेज आपने निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हमें 2-3 चीजें उसने पूछी हैं। फर्स्ट उसने क्या कैलकुलेट करनी है हमने एवरेज क्वार्टरली इन्वेंट्री, ठीक है। सेकंड जी सर। उसने कहा कैलकुलेट करें, इसी को कैलकुलेट करें फर्म्स इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए और द एवरेज एज ऑफ द इन्वेंट्री। तो ये चीजें आपने कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्यों बेटा? जी सर फार्मूला पुट करके। बताएं ना कैसे करेंगे, कुछ थोड़ा सा बताएं, कोई एक्सप्लेन करें। कोई कर सकता है एक्सप्लेन? इजाजत दूं स्लाइड शेयर करने की स्क्रीन? तो कैलकुलेशन बताए हमें लिख के कैसे होगी। नहीं सर अभी तो नहीं, वो आपकी स्क्रीन भी सर चली गई है, वो तो हाँ जी, शो वो करवा मैंने दो। बंद की है, चले नहीं गई, मैंने बंद की है। Cost of goods sold, yes, inventory. हाँ जी, कोई थोड़ा बहुत कोई डिस्कस तो करे ना यार, क्या है ये? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा कि उसकी 4 मिलियन की एनुअल इन्वेंट्री और उसने हमें क्वार्टरली इन्वेंट्री गिवन की हुई है, क्वार्टर बना के ना इन्वेंट्री का जी, कि कितनी कितनी 40% ग्रॉस मार्जिन है। और हमने मैं अभी आपके सामने दोबारा इसको लिख देता हूँ।
जो जो चीजें हैं, जो एनुअल सेल्स हैं that is equals to 4 million, तो हम 4 million पूरे ही लिख देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन is equals to 40%, और जो इन्वेंट्री का उसने हमें दिया हुआ है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। इन्वेंट्री which is equals to for first quarter it is $400,000। फर्स्ट क्वार्टर के लिए हमारे पास आ रही है 400,000। सेकंड के लिए हमारे पास आ रही है 800,000। थर्ड के लिए हमारे पास आ रही है 1.2 million। 1.2 million एंड फॉर फोर्थ हमारे पास आ रही है only 200,000। This is the information which is given to you, right? Yes sir। तो अब आपने बताना है कि आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज कैसे है। बताएंगे। सर या तो ये क्वार्टर जो इन्वेंट्री दी हुई है इनकी एवरेज फाइंड करके ऐसे हो जाएगा। हाँ जी, फाइंड आउट करें ना, एवरेज फाइंड आउट करें। कैसे फाइंड आउट करेंगे एवरेज? चुप कर जाते हैं यार डिस्कस करते करते। कोशिश करें, कोशिश करें। सर कर रहा हूँ लेकिन वो कुछ फर्क नहीं पड़ा उससे। नहीं, क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? क्या एनुअल सेल्स पे इन्वेंट्री की एवरेज बढ़वानी। नहीं फर्क पड़ा? क्यों भाई? नहीं सर जी आप बता। चलो मैं तो बता ही दूंगा बेटा। चलो इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये कैसे होना है। नजर आ रहा है आपको व्हाइट बोर्ड? यस सर। व्हाइट बोर्ड तो नजर आ रहा है ना आपको? जी सर आ रहा।
जी सर। चलें अब मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ आपके सामने, ठीक है। इसको आपने थोड़ा सा ना गौर करना है, बल्कि क्या ख्याल है, इसको एक्सेल पे कर लें? यस सर। जी सर। जी सर, ये एक्सेल वाला चलें एक्सेल पे करते हैं। मैं अभी आपके साथ एक्सेल शेयर करता हूँ। जी एक्सेल नजर आ रहा है आपको? यस सर। जी ओके। सर। जी हमने कहा था कि सेल्स हैं हमारे पास विच वर 4 million, राइट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास नहीं दी हुई, ऐसा ही है क्यों बच्चे? जी सर इसमें। जी सर। ग्रॉस बिल्कुल प्रॉफिट सर, मार्जिन, cost ग्रॉस of- प्रॉफिट हमें दिया हुआ है उसने। ग्रॉस प्रॉफिट उसने कहा था कि 40% ऑफ द सेल्स, राइट। तो हम यहाँ पे बिल्कुल ऐसा है। हम इसको कैलकुलेट करते हैं इक्वल टू, ब्रैकेट लगाएं, दिस डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 40, ओके। यस सर। यस सर। कितना आ गया? 1.6 मिलियन, सही हो गया। ठीक हो गया। तो ये हमारा था ग्रॉस जी, प्रॉफिट। अब ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो सी है वो हमारी निकल आएगी। अब उसका इससे फार्मूला निकल कैसे होगा? उसका सेल्स फार्मूला माइनस हमारे सेल्स में पास से होगा प्रॉफिट में जी, दिस माइनस दिस, 2.4 मिलियन आ जाएगा। 2.4 मिलियन आ गया। तो हमारा मसला हल हो गया कि नहीं? एक बिल्कुल सर जी, मेन मसला हो गया। चल अच्छा, अब उसके बाद कहता है एवरेज इन्वेंट्री आपने निकालनी है। तो एवरेज इन्वेंट्री जो सी है वो आपकी कैसे निकलेगी? आपकी जितनी इन्वेंट्रीज दी हुई हैं, जरा रिपीट करें, आप लोगों को याद होगा। इन्वेंट्री 400 इन्वेंट्री फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। फर्स्ट थी हमारे पास 400,000, सेकंड थी हमारे पास 800,000, थर्ड थी हमारे पास 1.2 मिलियन, फोर्थ थी हमारे पास 200,000, राइट। यस सर। ठीक है, अब एवरेज करना है हमने। एवरेज, तो एवरेज का आपके पास फार्मूला होता है AVG इक्वल टू AVG एवरेज, ठीक है। एवरेज किसकी करनी है? इन सब की। आपके पास कितनी एवरेज आ गई? इन्वेंट्री एवरेज ये आपके पास आ गई। इसको हम इक्वल टू दिस कर देते हैं। ओके हो गया? क्यों भाई? हाँ जी सर, ठीक है। अच्छा चलें, अब आगे चलते हैं हम इन्वेंट्री टर्नओवर की तरफ। इन्वेंट्री टर्नओवर का क्या फार्मूला है? सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस कितना आ गया?
3.69 times. ओके यस सर। यस सर। ठीक हो गया। अब एवरेज इन्वेंट्री सर आपने ये जी जी सर मैं कहने लगा था कि जो इन्होंने इन्वेंट्री क्वार्टरली दी है वो विदाउट सेल्स उसकी भी वो कॉस्ट ऑफ गुड ही दी है इन्होंने मेरे ख्याल में। नहीं बेटा, ये इन्वेंट्री होल्ड अप कॉस्ट है ना। इन्वेंट्री होल्ड अप है कि इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है। सही है सर। फर्स्ट क्वार्टर के एंड पे कितनी इन्वेंट्री पड़ी थी, उसके बाद कितनी पड़ी थी, उसके बाद कितनी पड़ी थी। ठीक है, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर। अच्छा अब इन्वेंट्री टर्नओवर आपके पास आ गया। अब इन्वेंट्री एज निकालनी है, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, कि एक इन्वेंट्री आपके पास कितनी देर तक पड़ी रहती है। तो उसका क्या फार्मूला है आपके पास, इक्वल्स टू सर 365 जी डिवाइडेड बाय दिस इन्वेंट्री टर्नओवर। तो ये आपके पास क्या आ गई, 98.85 डेज। बेटा समझ आ रही है कि सर नहीं। ये एवरेज एज दोबारा बताइएगा एक दफा। बेटा सर ये लास्ट वाला। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री जो सी है वो हमने रखनी है, वो हमें ये बताती है कि आपकी इन्वेंट्री कितनी देर आपके पास होल्ड रहती है बिफोर गेटिंग सेल। ठीक है, कि आपकी एक इन्वेंट्री, आज आपने एक इन्वेंट्री रखी है अपनी इन्वेंट्री स्टोर में, वो कितने दिनों बाद सेल हो जाएगी ऑन एवरेज। ठीक हो गया। ठीक है जी, इसका फार्मूला रिपीट कर दीजिए। जी फार्मूला मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं। इट इज नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। अच्छा ये अब वेरी करता है, कुछ बुक्स आपके 360 डेज भी ले लेंगी, कुछ 365 डेज लेंगी। ठीक है, 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर। ये सर एनुअल एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री आया ना, जी जी एनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। ठीक है सर। चलो अब कोई बात ना समझ आई हो। नहीं सर जी, अब समझ आ रही है। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग मेरे से जब तक बेटा माशाल्लाह। पूछेंगे नहीं ना तब तक कैसे मैं बताऊंगा। मुझे जब आप कहते हैं कि समझ आ रही है, समझ आ रही है, तो मैं तो नहीं कुछ कह सकता ना आपको। ठीक है, तो कोशिश सर अब करें। मैं पूछा करूंगा, कोई पूछे हाँ ना। चलें, आप कोशिश अब ये करेंगे कि आप लोगों ने ये एक्सरसाइज जो सी है चैप्टर नंबर 3 की, ठीक है, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आज तक हमने पढ़ा है उसके सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे और ट्राई करेंगे इसको एक्सेल पे करें। ओके सर। ओके सर। ठीक है, उससे एक तो आपको फार्मूला आसान हो जाएगा, याद रहना आसान हो जाएगा, और वो मुझे बना के आप लोग, जब मैं आपको देखना चाहूंगा, मैं आपसे एक्सरसाइज जिसने भी की होगी वो मैं आपको स्क्रीन शेयर करने की इजाजत दूंगा और मैं देखूंगा। तो आप लोगों की नेक्स्ट वीक की ये असाइनमेंट है कि आप लोगों ने ये क्वेश्चंस जो उनसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ आपने कहाँ तक करने हैं, क्योंकि जहां तक आप कर सकते हैं अभी जितना हमने पढ़ा है उसमें, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ।
जी नजर आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी सर, आ रहे हैं नजर। अच्छा चलें, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से। तो ये आपकी पहला प्रॉब्लम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, सारे 10, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, चेंज इन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट। आप लोगों का 3-17 तक, ठीक है, 3-17 तक आप लोग प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। ये आप लोगों ने 3-17 तक प्रॉब्लम मुझे करके नेक्स्ट क्लास में रिपोर्ट करना है। जी सर, इंशाल्लाह। ठीक हो गया? फिर उसके बाद हम जी आगे चलेंगे, फिर मैं देखूंगा कि आपको क्या समझ आ रही है, कैसे आप लोग मुझे मेरे पॉइंट को गेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। कोशिश करनी है आपने अगले क्वेश्चंस भी करें, अगले रेशियोज के सिर्फ फार्मूला ही हैं, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इस चैप्टर को आप लोगों ने कंप्लीट कर लेना है। ठीक हो गया? आगे 2 रेशियोज हैं सिर्फ, डेट रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है सर। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोगों ने कंप्लीट करना है और ये एक्सरसाइज करनी है। फिर हम जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया सर। सर एक क्वेश्चन मेरा, जी जी बेटा। सर ये जो अब लॉकडाउन लगा है, इसके बाद यूनिवर्सिटी ओपन होनी है कि नहीं? बेटा अभी तो कोई पता नहीं चल रहा है ना, अभी तो कोई ये सेमेस्टर तो आपका ऑनलाइन ही चल रहा है। सही है सर। ठीक है, वैसे यूनिवर्सिटी में हम तो आ रहे हैं अभी फिलहाल टीचर्स तो। जी जी। ठीक है, हाँ जी। चलो।